Welcome students, good morning all of you. Hello students, how are you? Everyone is fine, it's okay. Students, until the last period we solved exercise 7.6 up to question number 2. Today we are starting exercise 7.6 from question 3. Students, question 3 of 4 parts. Question 3 of 4 parts. Verify Lagrange mean value theorem for the following function. Part A. First of all, given function fx is equal to x plus 1 by x when x belongs to closed interval 1, 3. It's okay. स्टूडेंट्स, हमें ये क्लोज इंटरवल गिवन है, इसके लिए हमें इस फंक्शन fx को चेक करना है कि यहाँ लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई होगी या नहीं होगी. इट्स ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, x belongs to closed interval 1, 3. It means x की वैल्यू 1 भी पॉसिबल है, x की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और x की वैल्यू 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू भी पॉसिबल है. इट्स ओके. अब देखिए x इक्वल टू 1, अगर हम fx में x की जगह पुट करते हैं तो स्टूडेंट्स देन 1 प्लस 1 बाई n, 1 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2. 2 इज रियल नंबर. इट्स ओके. ऐसे ही पुट x इक्वल टू 3 in function fx. So f of 3 is equal to 3 plus 1 by 3 is equal to 10 by 3. 3 plus 1 by 3 is equal to 10 by 3 और is real number. ये भी क्या स्टूडेंट्स रियल नंबर है. इट्स ओके. इट मीन्स वी से दैट फंक्शन fx is continuous in closed interval 1, 3. इट्स ओके. प्लीज राइट फंक्शन. फर्स्ट पॉइंट, function fx is continuous function fx is continuous in closed interval 1, 3. It's okay. Second स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन फाइंड करने से पहले जो फंक्शन fx है उसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x. व्हाई? बिकॉज सेकंड कंडीशन में हम चेक करते हैं कि फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन fx f डैश x इज इक्वल टू fx का डिफरेंशिएट क्या होगा? f डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ x 1 डिफरेंशिएट ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इट मीन्स माइनस प्लस माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1, 3. इट्स ओके. स्टूडेंट्स, f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल. अब देखिए यहाँ x की वैल्यू जो होगी पॉसिबल होगी वो क्या होगी? 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू. और 1 और 3 के बिटवीन की वैल्यू को हम पुटअप करेंगे फंक्शन f डैश x में x की जगह. तो ये जो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये एक रियल वैल्यू गेट होगा. इट्स ओके. इट मीन्स which is finite at x इक्वल टू 2. स्टूडेंट्स, इसके बिटवीन की वैल्यू क्या लेंगे? 2 लेंगे. और 2 पर ये जो f डैश x है वो एक फाइनाइट वैल्यू गेट करेगा एंड एग्जिस्ट. इट्स ओके. सो function fx is differentiable in
open interval 1,3. Students, function fx is differentiable in open interval 1,3. It's okay. Then function fx satisfies all two conditions for LMVT. It means Lagrange mean value theorem. Function fx satisfies all two conditions for LMVT. LMVT full form Lagrange mean value theorem. It's okay. Then f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. Students, then f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. It's okay. Students, value of f dash c, you know value of f dash c, f dash x में x की जगह c पुट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी f dash c. इट मींस f dash c की वैल्यू होगी 1 minus 1 upon c square. 1 minus 1 upon c square is equal to, you know, f of b. It's students, b is equal to 3. Put in fx. f of 3 is equal to 3 plus 1 by 3. It means 10 by 3 minus f of a is equal to 1. 1 put in a function fx, f of 1, value of f of 1 plus 1 by 1, it means 2. It's okay. Upon b minus a, value of b 3 minus 1 is equal to 2. Students, you are understanding? It's okay. Next, 1 minus 1 upon c square is equal to, students, 10 by 3 minus 2 of LCM 3. It's okay. 10 minus 3 to 6. It's okay. Next, 3 multiply 2. Students, 3 minus 1 is equal to 2. 2 multiply 3. It means 6. Students, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया. एलसीएम 3 आया. 3 multiply 2 से 3 to 6, तो 10 minus 6 upon 3 LCM multiply by 2. 3 to 6. It's okay. Next, 4 upon 6 is equal to 2 by 3. It's okay. Next, 1 minus 1 by c square is equal to 2 by 3. Students, you are understanding? Please write. यहां से रफ कर देते हैं. Students, minus 1 by c square is equal to 2 by 3 minus 1 by transposing. It's okay. Plus 1, change in right hand side, minus 1 is equal to 2 upon 3 minus 1. It means minus 1 upon 3. It's okay. Minus minus cancel. Next step, 1 by c square is equal to 1 by 3. It is clear? Next step, c square is equal to 3 and c is equal to plus minus root 3. But root 3 not belongs to open interval 1,3. Students, minus root 3 not belongs to open interval 1,3, but plus root 3 belongs to open interval 1,3. So value of c is equal to plus root 3 belongs to open interval 1,3. It's okay. Students, it means जो c की जो वैल्यू होगी वो प्लस रूट 3 और रूट 3 belongs to 1,3. It's okay. Hence
Lagrange mean value theorem, LMVT, Lagrange mean value theorem, या आप इसको पूरा लिख सकते हैं, Lagrange mean value theorem verified. It's okay. Hence Lagrange mean value theorem verified. It's okay. Why? Because C is equal to root 3. Root 3 belongs to open interval 1 comma 3. It's okay. Thanks. Please write. Next part B. Students, given function fx is equal to x square minus 4 upon x minus 1. X belongs to closed interval 0 comma 2. It's okay. Students, first of all, here a is equal to 0 and b is equal to 2. Students, after x belongs to closed interval 0 comma 2, it means x की वैल्यू क्या होगी, 0 भी होगी, x की वैल्यू 1 भी है और x की वैल्यू 2 भी है. इट्स ओके. x belongs to closed interval, it means x की वैल्यू 0 भी है. इट्स ओके. इनिशियल वैल्यू भी है और x की वैल्यू टर्मिनल वैल्यू भी है. इट्स ओके. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू इसका 0 और 2 का बिटवीन की वैल्यू भी होगा. बिटवीन की वैल्यू हमने क्या ले ली, 1 ले ली. x इज इक्वल टू 2. अब देखिए इन तीनों पर हम चेक करते हैं कि जो फंक्शन fx है वो एक रियल वैल्यू गेट करता है. इट्स ओके या नहीं. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस 1. इट्स ओके. इट मींस 4 और 4 इज रियल वैल्यू. इट्स ओके. नेक्स्ट x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं. f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 0 इंफिनिटी. इट मींस x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन fx डज नॉट एग्जिस्ट which is infinite at x is equal to 1. It's okay. It means function fx is not continuous in closed interval 0 comma 2. It's okay. So Rolle's theorem not verified. It's okay. Lagrange theorem, sorry. Students, first condition, putting x is equal to 1 in function fx. It's okay. You know f of 1 is equal to 1 square minus 4 upon 1 minus 1 is equal to 1 minus 4 upon 0 is equal to minus 3 upon 0 is equal to infinity. It's okay. So which is infinite at x is equal to 2 and does not exist and does not exist. It's okay. So function fx is not continuous in closed interval 0 comma 2. Students, so function fx is not continuous in closed interval 0 comma 2. It's okay. You are understanding? Hence Lagrange mean value theorem does not satisfied, does not verified.
इट्स ओके, यू आर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, वो सेटिस्फाई नहीं है। सो फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2, हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम Lagrange mean value theorem does not verified. It's okay. Please write. Next, part C. Students, part C. Function f(x) is equal to given function f(x) is equal to x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2, x belongs to minus 2 comma 3. It's okay. Students, given function f(x) is equal to x square minus 3x plus 2 when x belongs to minus 2 comma 3 closed interval. Students, इंटरवल कैसे है? क्लोज्ड इंटरवल है. इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a is equal to minus 2 and b is equal to 3. Students, now x belongs to closed interval. इस इंटरवल पर ये जो f(x) है ये रियल वैल्यू गेट होना चाहिए. इट्स ओके. इट मींस x की वैल्यू हम -2 भी ले सकते हैं, x की वैल्यू हम +3 भी ले सकते हैं और x की वैल्यू इसके बिटवीन की वैल्यू भी हो सकती है. स्टूडेंट्स, हियर फंक्शन f(x) इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. स्टूडेंट्स, polynomial function, quadratic polynomial function, everywhere continuous and differentiable in given interval. It's okay. So point first, function f(x) is continuous in closed interval, in closed interval -2 comma 3. इट्स ओके. सेकेंड, स्टूडेंट्स देखिए ये जो फंक्शन है, ये जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नहीं है. फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होता है? जब वैल्यू किस में हो? रेशनल फॉर्म में हो, p/q फॉर्म में हो, तभी तो इन्फिनिटी आएगा. इट्स ओके. ये तो क्वाड्रेटिक है. It means differentiable and continuous in given interval. Second point, find करते हैं differentiable. तो first of all differentiate given function f(x). f dash x is equal to x square of differentiate 2x minus 3. It's okay. x belongs to open interval -2 comma 3. Students, इस open interval के लिए f dash x एक रियल वैल्यू गेट करेगा. इट्स ओके. Will we get a real value? Function f(x) is differentiable in open interval -2 comma 3. स्टूडेंट्स, जो फंक्शन f(x) है इस ओपन इंटरवल में क्या है? डिफरेंशिएबल है. इट्स ओके. Since function f(x) satisfies all two conditions for LMVT.
इट्स ओके स्टूडेंट्स, जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी जो टू कंडीशंस हैं वो एलएमवीटी लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सेटिस्फाई है. इट्स ओके. देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. इट्स ओके स्टूडेंट्स. देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए. स्टूडेंट्स एफ डैश सी यहां से फाइंड होगा. एफ डैश सी वैल्यू 2c माइनस 3. यहां पर x की जगह c पुट करेंगे तो एफ डैश सी होगा. एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी 2c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए. एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ माइनस 2 अपॉन b माइनस ए. इट मीन्स 3 माइनस a माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2. इट्स ओके स्टूडेंट्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3. वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 you know students please here f of 3 square 9 3 3 जा minus 9 plus 2. it means f of 3 2 minus f of minus 2 यहां पुट करेंगे तो क्या होगा प्लस 4 प्लस 6 और प्लस 2. इट मीन्स प्लस 12. तो ये माइनस 12 हो गया. इट्स ओके अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2. इट मीन्स 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. इट्स ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 2c इज इक्वल टू माइनस 2. इट्स ओके. 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2. यहां से रफ करते हैं ताकि इक्वेशन कंप्लीट हो जाए. स्टूडेंट्स 2c इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 बाय ट्रांसपोजिंग. इट्स ओके. सो 2c इक्वल टू 1 c इक्वल टू 1 बाई 2. 1 बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 2 3. स्टूडेंट्स c इज इक्वल टू 1 बाई 2. 1 बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 2 3. इट्स ओके. अब देखिए यहां पर जो c की वैल्यू है वो इसी बिलोंग है. इट मींस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है. हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम verified. It's okay. Hence Lagrange mean value theorem verified. It's okay. You are understanding. Next question. Next part D. Students, last part of question number 3. Given function fx is equal to 1 upon 4x minus 1, x belongs to closed interval 1, 4. It's okay. यहां में लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है. इट्स ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर a is equal to 1 and b is equal to 4. It's okay. Next first condition students, x belongs to closed interval 1, 4. इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन fx है will be get a real value. It's okay. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x इज इक्वल टू 1. यहां 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 4 इंटू एक्स की जगह 1 करेंगे तो माइनस 1 और 1 अपॉन 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर. इट्स ओके. ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 करेंगे तो यहां 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 1 अपॉन 15 इज रियल नंबर. इट्स ओके. एंड इसकी बिटवीन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी क्या होगा एक रियल वैल्यू गेट होगी. इट मींस function fx is continuous in closed interval 1, 4.
इट्स ओके। सेकंड कंडीशन हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स। इट्स ओके स्टूडेंट्स, 1 अपॉन 4x माइनस 1, लेट यू नो 4x माइनस 1 इज लीनियर। इट्स ओके, सो इसको हम x लेट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, क्या लेट की हमने 4x माइनस 1, इट मींस 4x माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 4x माइनस 1 इज लीनियर, सो 1 अपॉन x ऑफ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू यही तो है, इसका स्क्वायर हो गया, इनटू अब डिफरेंशिएट किसका होगा 4x माइनस 1 का, और 4x माइनस 1 का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 4x का 4 हो जाएगा और माइनस 1 का 0। इट्स ओके, इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए, इसका डिफरेंशिएट ये होगा। स्टूडेंट्स x बिलोंग्स टू किसके लिए, ओपन इंटरवल 1,4 के लिए। स्टूडेंट्स ये जो f डैश x है, इस ओपन इंटरवल के लिए जो वैल्यू गेट करेगा वो फाइनाइट वैल्यू होगी और एग्जिस्ट वैल्यू होगी। इट्स ओके, विच इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट वैल्यू, इट्स ओके, विच इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट वैल्यू फॉर इस इंटरवल के लिए। इट्स ओके, सो फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval 1,4। स्टूडेंट्स तो ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 1,4 के लिए। इट्स ओके, यू आर सेटिस्फाइड, सिंस फंक्शन f(x) satisfies all two conditions for LMVT। इट्स ओके, जो फंक्शन एफ एक्स है सेटिस्फाइज ऑल टू कंडीशंस फॉर एलएमवीटी, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इट्स ओके, वैल्यू ऑफ एफ डैश सी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4x माइनस 1 स्क्वायर। नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 4c माइनस 1 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ एफ ऑफ बी, इट मीन्स एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ ए, इट मीन्स एफ ऑफ 1 अपॉन बी माइनस ए, इट मीन्स 4 माइनस 1। इट्स ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4, value of f of 4, it means x is equal to 4 put in function fx, it means students यहाँ 4 पुट करेंगे क्या होगा 1 अपॉन 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 1 अपॉन 15 हो जाएगा, 1 अपॉन 15 माइनस f of 1 it means 1/3 अपॉन b minus a, it means 3। it's okay, please understand, इट्स ओके। नेक्स्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। इट्स ओके, 15 to 15 कैंसिल, 1 माइनस 3 5 जा 15 माइनस 5 अपॉन
3. It means -4/45. It's okay. 15 3 is 45. Minus 5 plus 1 minus 4 is equal to -4/45. 15 3 is 45. It's okay. Minus minus cancel. Students, you are understanding? Next, इसको रफ करते हैं थोड़ा सा. Students, next step 4/, and 4 से 4 cancel. It's okay. So 1/4c minus 1 का whole square is equal to 1/45. It's okay. You know numerator is equal to numerator is equal to numerator, दोनों क्या है, both same है. So denominator also same. 4c minus 1 whole square is equal to 45. It's okay. Next step 4c minus 1 is equal to under root 45. Students, left hand side square cancel, other side take a square root. It's okay. 4c minus 1 is equal to plus minus 45 square root of 45 square root. It means 9 5 is 45. 9 का square root 3 root 5. It's okay. Students, 45 9 into 5, 9 को हम 3 लिख सकते हैं और ये root 5. It's okay. Students, 4c is equal to -1, change it right hand side, +1. It's okay. -1 उधर गया तो +1 हो गया. पहले से क्या है, प्लस माइनस 3 root 5. It's okay. c is equal to 1 plus minus 3 root 5/4. Students, you are understanding? Sure. But 1 minus 3 root 5/4 not belongs to open interval. Not belongs to open interval 1,4. Students, यहाँ जो 1 minus 3 root 5 ये जो वैल्यू है, यहाँ से जो वैल्यू होगी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव हमें गेट होगी. नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ओपन इंटरवल 1,4, नॉट बिलोंग्स टू. इट्स ओके. बट 1 plus 3 root 5/4 belongs to 1,4. Students, but ये जो वैल्यू है वो बिलोंग किससे होगी, ओपन इंटरवल 1,4 से, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू इससे बिलोंग करेगी. इट्स ओके. इट मींस सो फाइनली c इज इक्वल टू 1 plus 3 root 5/4 बिलोंग्स टू 1,4. स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक c एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एक एग्जिस्ट वैल्यू फाइंड हो रही है. c इज इक्वल टू 1 plus 3 root 5/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4. यहां से हमें चेक हो रहा है कि लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाइड. इट्स ओके. हेंस लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम verified. It's okay. Hence Lagrange mean value theorem verified. It's okay. Students, exercise 7.6 complete related to Rolle's theorem and Lagrange mean value theorem. Next period start करेंगे हम exercise miscellaneous exercise. It's okay. Thanks.